सुबह के बजे हैं 9:30। नमस्ते, मैं राशिद। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के खुलासे के बाद रुपहले पर्दे का सच हर किसी के सामने है। हैरान करने वाला है। आपको आगे दिखाएंगे, इस केस के बॉस का नाम भी बताएंगे। लेकिन राज्यसभा में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। राज्यसभा में हंगामा चल रहा है। कल जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, यह कहना है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज चूंकि 12 अलग अलग पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और इनमें यह कहा गया है कि जिस तरह बिल के विरोध में विपक्ष के भारी हंगामे और सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित करने की मांग को नजरअंदाज करके डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने दोनों किसान बिलों को पास कराया और इसी के चलते 12 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। राज्यसभा में क्या चला है, एक बार सुनते हैं। And move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. In view of the continuous disruption of the House, see, you are seeing now. If anybody has missed yesterday, you can see it today. And observed that the deputy chairman has persistently requested the members to go to their seat and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption in the House, and the division could not have taken place, as I explained to you earlier. Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha, and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliamentary Affairs, he want to move a resolution. Please. Sir, I move that the following members be suspended from the services of This is not the way. Please sit down. for a period You are not. You have been named. You for can't the speak. remaining part of the current session for their unruly behavior, especially with the chair and their gross disorderly People, I appeal to the in- countrymen, people who have missed yesterday, they can witness today. and their gross disorderly conduct in the violation of the rules and etiquettes of Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I named the following persons: Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen, and Sri Elamaram Karim. The motion has been moved. The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elamaram Karim. All these people have been named by the Minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nasir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House. Those members who have been called, leave the House. Now, as for the business, please, आप लोग बाहर जाना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अभी की बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा की कार्रवाई से एक हफ्ते के लिए विपक्ष के 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी के लिए यही ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होनी चाहिए।
टीएमसी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बड़े नाम जो है डेरेक ओब्रायन हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। कुल 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। 1 हफ्ते के लिए, अगले 7 दिन के लिए राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव लाया गया, ये मोशन लेकर के आया गया और उसके बाद ये उपसभापति की तरफ से फैसला किया गया। पहले तो इस पर ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई इस मोशन को लेकर के, और उसके बाद फिर सभापति यानी कि वेंकैया नायडू, राज्यसभा के जो कि सभापति हैं, उनकी तरफ से यह कह दिया गया कि ये 7 सांसद निलंबित होंगे अगले 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि इन लोगों ने रूल बुक फाड़ी थी। इन्होंने माइक तक आकर के माइक छीनने की कोशिश की थी। राज्यसभा के पीठासीन उपसभापति यानी कि कल जो कुछ भी हुआ था राज्यसभा के अंदर कृषि बिल को लेकर के जिस तरह का हंगामा किया गया था, और अभी के लिए यह बड़ी खबर है कि राज्यसभा से 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन लिया गया है। 1 हफ्ते के लिए निलंबित किए गए सांसद 8 सांसद हैं, जिसमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह निलंबित, इनके अलावा भी 6 और सांसद हैं। कुल मिलाजुला करके राजीव साठे भी हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। कुल 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी निलंबित हो गए हैं। किसान बिल पर संसद में आज भी संग्राम मचा है, सुनिए। Calling attention on GST compensation. Please. No, how can there be division? Over. It's over. Please. You know the position of the House. Please. जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, किसान बिल पर संसद में आज भी संग्राम है। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें बड़े नाम है टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित, हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन, संजय सिंह को भी सस्पेंड किया गया, राजीव साठा भी निलंबित किए गए हैं। कुल मिला जुला करके 8 ऐसे सांसद हैं विपक्ष के जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इस सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। राज्यसभा के 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 1 हफ्ते के लिए इन्हें निलंबित किया गया। हंगामा करने वाले 8 सांसद निलंबित। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, इसके अलावा राजीव साठव को भी निलंबित किया गया है। इस सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और किसान बिल को लेकर के अभी भी राज्यसभा के अंदर हंगामा चल रहा है और विपक्ष का कहना यह है। इसके अलावा के राघव, निपुन बोरा ये भी सत्र से बाहर हैं। उप सभापति हरिवंश से दुर्व्यवहार का इन सभी पर आरोप है। इन्होंने रूल बुक फाड़ी थी और उपसभापति की बेंच तक, उनकी चेयर तक आ गए थे। राज्यसभा के 8 विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है। राज्यसभा में हंगामे के दौरान इन सांसदों को निलंबित किया गया है। संजय सिंह, राजीव साठव हैं, डेरेक ओब्रायन, इन्हें निलंबित किया गया। ये बड़े नाम है के राघव, निपुन बोरा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगले 1 हफ्ते तक हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से राज्यसभा लाइव। If you defy the chair, then I leave it to your wisdom. That is over now. If you don't want call attention, then I will go to the bill. Okay. You are not interested in call attention. You have already been named Mr. Sanjay Singh. You are creating another situation. ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. He is not part of the House. The Indian Institute of Information Technology Last Amendment Bill 2020. Shri Ramesh Pokhriyal Nishank move the bill. किसान बिल पर संसद में हंगामा मचा है। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया है। राजीव साठा, निपुन बोरा पर भी कार्रवाई की गई है। सदन की कार्रवाई जारी रखने के लिए कल मार्शलों को बुलाना पड़ा था। 10 मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग शुरू हुई। हंगामे के बीच ही विधेयकों को सरकार ने कल पास कराया था। और बड़ी बात यह है कि वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की थी। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उप सभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने सदन की रूल बुक भी फाड़ दी थी। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव की मांग को भी खारिज कर दिया गया। हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर कार्रवाई की गई है। और चूंकि 12 अलग अलग पार्टियां थीं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया था, इनमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आम आदमी पार्टी शामिल थी जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था उप सभापति के खिलाफ। ये 12 पार्टियां भी बहुत ज्यादा एक्शन में, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही थी। लेकिन कल
जिस तरह से तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की, सदन की रूल बुक फाड़ने की कोशिश की, और तभी से ये लगने लगा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी राज्यसभा में जारी है हंगामा, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और वो भी तब जबकि सदन की कार्रवाई में तीसरे नंबर पर आज थर्ड बिल है। इससे पहले विपक्ष डिप्टी स्पीकर हरिवंश के खिलाफ दिए जा चुके नोटिस पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन ये मांग राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से खारिज कर दी गई है। बदले में सरकार के पक्ष से भी हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ उनकी वीडियो क्लिपिंग दिखाते हुए एक्शन की मांग की गई और एक्शन ले लिया गया है। राज्यसभा में बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है, देखिए। तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अभी की बड़ी खबर, हंगामे के बाद 10 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, नितिन वोरा, संजय सिंह, राजीव साठे, इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया है और अभी 10 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। कल 12 विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया था, इसे भी खारिज कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह का उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई नहीं होगी। राज्यसभा में हंगामे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अगले एक हफ्ते के लिए डेरेक ओब्रायन, नजीर हुसैन, के रागेश, रिपुन बोरा, इन सभी को निलंबित कर दिया गया और इनमें से ज्यादातर टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। टीएमसी सांसदों ने कल उपसभापति के पास जाकर के सदन की रूल बुक फाड़ दी थी और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। मार्शल को फिर बीच बचाव करना पड़ा था, जो तस्वीरें आपको कल की नजर आ रही हैं। और उसके बाद अब राज्यसभा के सभापति ने ये एक्शन लिया है। हंगामा करने वाले 8 सांसद निलंबित हो गए हैं। बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं सांसद। अभी की बड़ी खबर है और राज्यसभा में आज भी जम करके हंगामा हुआ है। किसानों का तीसरा बिल आज चूंकि आना है राज्यसभा में और सदन की कार्रवाई जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा था। कल 10 मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज हंगामे के बीच ही 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई लाइव आप देख पा रहे थे और 22 मिनट के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सदन से सीधे लाइव है मेरे साथ। राज्यसभा के अंदर क्या चला ये बताएंगे राकेश कुमार सिंह। लेकिन राकेश, आप बताइए कि विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी? 8 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं और इसके अलावा उपसभापति के खिलाफ जिस अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया था वो भी खारिज कर दिया गया है। आगे की स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की क्या होगी? देखिए राशिद, साफ तौर पर जिस तरह की उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार की रणनीति साफ तौर पर यही था कि जिन सांसदों ने कल उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार किया था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई। 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह आप पार्टी, राजीव साठव कांग्रेस, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नाजिर हुसैन और इलामरन के करीम को सस्पेंड कर दिया गया है 1 सप्ताह के लिए। तो साफ तौर पर राज्यसभा के सभापति ने ये माना है कि जो कंडक्ट था कल, उन्होंने कहा कि ये कल का दिन जो है संसद के इतिहास में जो है गलत लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सांसदों का व्यवहार रहा खासतौर पे उपसभापति के लिए वो उचित नहीं था और इसी के ध्यान में रखते हुए सभापति ने कार्रवाई की है। रही बात की जो 12 दलों द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस की बात थी, तो साफ तौर पे इन सभापति की ओर से खारिज किया गया कि जो नियम है उस नियमों का पालन नहीं किया गया है। अब जो है विपक्ष की रणनीति अब यही होगी कि अब इसे सड़क पर लाया जाए। तो साफ तौर पर राज्यसभा आज पूरी तौर पर हंगामेदार रहने की संभावना है। 10:30 बजे तक के लिए तो हंगामेदार रहने की संभावना है। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे ये समझाइए राकेश कुमार सिंह, चूंकि राज्यसभा में राज्य मंत्री राव साहब दानवे तीसरे किसान बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 भी पेश करेंगे। हंगामे के बीच क्या ये बिल पेश हो सकेगा? क्या संभावित लगता है? और मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर इतना हंगामा हो रहा है, क्या ये माना जाए कि आगे जो बहुत महत्वपूर्ण लेबर रिफॉर्म बिल है हंगामे की भेंट चढ़ सकता है?
देखिए, जहां तक इस बिल का सवाल है तो विपक्षी दल के नेताओं से बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बिल को लेकर भी उनका रुख वही रहेगा, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और जिस तरह से सरकार द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, कल जिस तरह से जो बिल पास कराया गया वाइट वॉइस से, वो उचित नहीं था। और इसी तरह से अगर आज भी बिल पास कराने की कोशिश होगी तो उनका विरोध रहेगा। लेकिन साफ तौर पर राशिद, जिस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने जो निर्णय दिए हैं और उसको लेकर विपक्ष का तेवर आपने देखा, विपक्ष जो है काफी हंगामेदार है। ऐसी स्थिति में जो है राज्यसभा की कार्यवाही चलने की कम ही उम्मीद है। राकेश कुमार सिंह दोबारा भी 20 मिनट के बाद आपके साथ में जुड़ेंगे। अभी की बड़ी खबर यह है, जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, किसान बिल को लेकर के राज्यसभा में आज फिर से हंगामा हुआ है। कल हंगामा करने वाले 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 8 सांसदों में ज्यादातर आम आदमी पार्टी के हैं, टीएमसी के सांसद हैं और चूंकि 12 विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया था, इसे खारिज कर दिया गया है। 8 विपक्षी सांसदों को अगले 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन किसान बिल तीसरा आज आने वाला है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 आज आने वाला है। लेकिन लगता ऐसा है कि यह बिल कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। राज्यसभा की कार्रवाई 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 10 बजे फिर से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर से हंगामा होने के आसार हैं।